ahead of the grand consecration of the Ram Mandir on the 22nd of January. Preparations are underway in full swing. PM Modi has shared a special audio message where he has said that he is going to begin an 11-day special Anushthan from today. Ayodhya, meanwhile, is all decked up and security is heightened across the city. Many leaders, celebrities, industrialists have been invited for the consecration ceremony in Ayodhya. 45 tons of laddus, meanwhile, are also being made as well for that Pran Pratishtha. Let me bring in Arzu Seth, my colleague, for more details on this story. Arzu, the Prime Minister Narendra Modi sharing a special message today, even as Ayodhya and the country gears up for the 22nd of January. Well, yes, the entire country is preparing themselves for the historic moment and ahead of the inauguration ceremony of the Ram Temple inauguration ceremony on January 2022. Prime Minister Narendra Modi has released an audio message in which he announced that he will start an 11-day special ritual from today, and in the audio message posted on his official YouTube channel, Prime Minister said he was unfortunate to be a witness to what he described as a historic and auspicious occasion. Also, he said he was, seeking blessing from all the people. 11 days are left for the Pran Pratishtha of the Ram Temple. God created me to present the people of India during the consecration. Keeping this in mind, I am starting a special ritual for 11 days from today. He noted that it was difficult to articulate one sentiment at this time, but he was making an attempt. He also, expressed his emotions and said that I am emotional for the first time in my life. I am experiencing such feeling. Some moments of life turn into reality only because of divine blessing. It is such a special occasion for all of us today and for the devotees of Ram spread all over the world. This is wonderful atmosphere of the devotion to the Lord Ram everywhere. Yes, this is very true, that not only in India but around the world the preparation is being made. There will be a live telecasting on Eiffel Tower, all around the world, all the preparations are being made. Right. And everyone is waiting for that historic moment. Yes. Absolutely, Arzu. And meanwhile, of course, streets and shops in Ayodhya all decked up. Security has been heightened there. Of course, we are learning that Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, also inspected preparations ahead of the consecration ceremony. So even on ground, Arzu, in Ayodhya, a lot of preparations underway, from laddu being prepared to the CM of the state also inspecting, the preparations on ground. Well, yes, since the day the preparation has been started, the Prime Minister, also the Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, is tracking all the preparation and has not left any stone unturned, on the security basis or on the preparation basis. Now the prasad is also being made, the lakhs of laddus is being prepared, that is the historic day and everyone wants to contribute for that special day, and that's why everyone, whether it's the person who is making the building or the person who is contributing in the prasad, everyone is preparing themselves for that historic day. Also, the security has been beefed up today. Today also, security has been deployed. The security personnel has been deployed at the several important points where the Ayodhya, where the VIPs will be reaching. All the preparations are being made, how the VIP will reach, where they will stay. So all these has been kept in mind and all the preparations are being made. Yes, sir. Sumit Peer, political analyst, also is joining us on the broadcast. Sumit, the Prime Minister putting out a message even as Ayodhya gears up for the 22nd of January. Uday, good morning. Well, it's a very important message because there are a couple of things which are here when the Prime Minister is saying that it's a once in a millennium kind of a once in a century kind of event which is happening. I am privileged and lucky that I have got opportunity to represent 1.4 billion Indians, and I am getting emotional because of this divine thing, because of the Bhagavan Sri Ram's Bhakti and Pran Pratishtha. I am getting this voice from my inner conscience that I should do an Anushthan of 11 days because 11 days are left, and that in Sanatan we have this 11 days are very important for any big yajna and Anushthan happening. Such a big event is happening in the history of India. So, and he being one of the key persons doing it, so he has prepared himself for this Anushthan, which might include Vrat, which might include puja. We don't have the details, which might include a lot of spiritual well-being, spiritual preparedness, and devotion. Because this voice is coming from his inner heart, and he is very, direct in saying, for the first time I'm emotional in life, and this
bhakti ka bhav, that this devotional feeling which is coming from my inner heart is asking me to do this. And he says that I am representing you. It's not just a political event, or it's not just a ceremonial event. It's a lot of emotion, a lot of devotion, not only from him, but for all the Ram Bhakts which are across the world. So he's literally preparing himself for this. And you know, when it's Navaratri and all, Honorable Prime Minister has vrats for 9 days, and he's only on orange juice and water. Now, even for this occasion of Pran Pratishtha of Bhagavan Shri Ram, he's preparing himself for these 11 days, and I don't know what will his Anushthan include, what all rituals, what all practices, right, and what all it will Sumit, stay with us. We have my colleague Ananya also joining us now from Ayodhya. Ananya, what is the situation on ground there in Ayodhya today? What all are we expecting on ground, even as the PM has put out this video message saying that 11-day Anushthan for him begins from today? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक बार तस्वीर जरा देख लीजिए। बड़ी संख्या में राम भक्त जो है वो 22 से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले, जो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। वहीं आपको बता दें, बात अगर हम अयोध्या की करें, बात अगर हम बनारस की करें और उत्तर प्रदेश के तमाम शहर जहाँ पर प्रसाद जो है वो बनाया जा रहा है अयोध्या के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के लिए। और देखिए, कुछ भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? सिक्किम से। सिक्किम से दर्शन करने के लिए कैसा लग रहा है अयोध्या देखने के लिए? बहुत काया पलट गया इधर का। काया पलट दिया। लग रहा था, इतनी उम्मीद थी कि इस तरह का मंदिर बनेगा? उम्मीद तो नहीं था उम्मीद के बाद नहीं थी, फिर भी उम्मीद से ज्यादा तस्वीर जो है वो बदली हुई अयोध्या की देख रहे हैं। आप कहाँ से? सिक्किम से। आप भी आए हो? कैसा लग रहा है मंदिर अयोध्या देख? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी देखने बाकी है। हाँ, अभी बाकी है। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? अरेंजमेंट्स ठीक है यहाँ पर? हाँ, हो रहा है, अच्छा ही होगा। देखिए, जो लोग अब देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं। ये लोग सिक्किम से आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे देश के कोने कोने से लोग जो है उधर वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और एक बार जरा मंदिर निर्माण की तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यही जो है वो फ्रंट गेट, एक तरह से कह सकते हैं यही फ्रंट गेट है। यहीं से आप यहाँ से 400 मीटर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे और वो भव्य तस्वीर देख पाएंगे। आपने दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी इस तरह का मंदिर बनेगा कभी? अब हमारे भव्य तस्वीर आप देख रहे हो। हाँ जी जी। और पहले रामलला टेंट में विराजमान थे और अब 22 को महल में विराजमान हो जाएंगे। बहुत खुशी की बात है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। आप कहाँ से आई हैं? हम अयोध्या से आए हैं। तो अयोध्या कितनी बदली हुई अब आपको नजर आ रही है? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। देखिए, जब अयोध्या की बात करते हैं तो विकास यहाँ पर जो है वो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर विकास हुआ है। आप कहाँ से आए? आगरा से। हाँ जी। कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बदला लग रहा है। अयोध्या का पूरा वातावरण बदला हुआ है, इस समय पूरा राममय हो गया है और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहली बार आए हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर लोगों को। और किस तरह से अयोध्या का वातावरण जो है वो राममय हो गया है, ये आपने यहाँ पर लोगों को सुना। और भी मतलब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं ना तो आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई राजस्थान से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, कुछ कार सेवक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 30 से 35 साल पहले हमने ये संकल्प लिया था, वो संकल्प अब सिद्धि तक पहुंचा है। वो तस्वीर हम देख पा रहे हैं जब हमने रामलला को टेंट में भी देखा और अब हम महल में जब देखेंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सोचा भी नहीं था वैसी तस्वीर, वैसी अयोध्या देख पा रहे हैं। अब जब लोकल में यहाँ पर आप लोगों से बात करते हैं तो वो लगातार यही कह रहे हैं 90% अयोध्या जो है वो बदल चुका है। अब यहाँ से ही देख लीजिए, ये बहुत कंजेस्टेड रास्ता जो है वो एक समय में हुआ करता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ऊपर शेड जो है वो आपको नजर आ रहा है। आगे तक अगर आप जाएंगे जहां पर राम मंदिर बना हुआ है वहां तक ये पूरा शेड जो है वो है और यहीं से भक्त जो है वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और भी भक्तों का, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो दिन भर इसी तरह से लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह की कल्पना भी नहीं की थी उस तरह का मंदिर हम देख पा रहे हैं। और यही वजह है शायद लोगों से रहा भी नहीं जा रहा है 22 से पहले। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा ही गया है 22 तारीख को लेकर कि
अपने घरों में रहिए, कम से कम 22-23 को आप अयोध्या आने का प्रोग्राम मत बनाइए, क्योंकि जो पूरा काम है, जो पूरा विधि विधान से पूजा अर्चना है वो ठीक से हो पाए, अरेंजमेंट सीक्वेंस ठीक से हो जाए, किसी तरह की कोई व्यवधान ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही कहा गया है कि यहाँ मत आइए, आप घरों में दिवाली मनाइए, राम ज्योति जलाइए। और उससे पहले हालांकि लोग जो है वो कैसे अयोध्या पहुँच रहे हैं ये देखने के लिए कि कम से कम एक बार प्रभु श्री राम के राम मंदिर की तस्वीर जो है वो देख ले और समझ ले कि देखिए किस तरह से अयोध्या का विकास जो है वो तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। कैसा लग रहा है अयोध्या आकर? बहुत सुंदर लग रहा है और परमात्मा करें कि और भव्य हो जाए। और भव्य हो जाए। आप अभी गोरखपुर से आए हैं, कैसा कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं अयोध्या? ये अलौकिक है, अलौकिक है कि चूंकि यह भगवान, यह पौराणिक नगरी भी हमारी है और अयोध्या काशी की स्तर की शुरू से नगरी रही है और यह धर्म क्षेत्र है, भारत का हृदय स्थल है एक तरह से, क्योंकि यहाँ के सम्राटों ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया और उसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ जो नारायण के अवतार कहे गए हैं। और वो अभी तक टेंट में थे लेकिन अब मंदिर बन गया। जी, चूंकि अयोध्या तो हम लोग बहुत पहले से आते जाते हैं, हम लोग का। आप लोग पहले से आते हैं, कितना बदली हुई अयोध्या, कितना विकास दिख रहा है? जी, पहचान कहाँ मिले? ये रास्ता जो अभी नया बन रहा है, ये तो रास्ता उधर से था, घूम के उधर से जाते थे हम लोग, अभी यह रास्ता पूरा सीधे बन गया है तो अब सीधे जा रहे हैं हम लोग। तो करीब साल भर 2 साल बाद आ रहे हैं, 2 साल बाद में ही हम लोग पहचान नहीं रहे हैं किधर से है, पहचान नहीं पा रहे, इतना बदल गया। बिल्कुल बदलाव हो गया है। अभी नया घाट पे हम लोग स्नान किए, वहाँ लता मंगेशकर जी का चौक समर्पित है, वह इतना अच्छा सुंदर बन गया, उधर सजाया गया। जो अयोध्या का जो बाईपास से गेट बना हुआ है सूर्य देव का, आप सोचिए कि जो लोग 2 साल 1 साल पहले आए थे वो अब ये कह रहे हैं अयोध्या को देखकर कि इतना बदलाव हमने सोचा नहीं था। अब इस अयोध्या को देखते हैं तो हम पहचान नहीं पा रहे और कभी सोचा भी नहीं था कि इतना डेवलपमेंट हम देख पाएंगे, इतना विकास हम देख पाएंगे। और ये अगर विकास कहीं का हो रहा है तो आप सोचिए कि रोजगार भी जो है वो लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप रामपथ को देखेंगे, मेरे ठीक पीछे जो है ये रामपथ है और इस रामपथ में जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉमन बिल्डिंग कोड जो है वो लागू है। कॉमन बिल्डिंग कोड का मतलब है जी अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए, वो तमाम जो है प्रतिक्रिया हमारे तक लाने के लिए। कुछ और प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही हैं, वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। पूजा पद्धति उसकी बहुत बड़ी होती, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पहले देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है, तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.